first up begin with those multiple pictures that are coming across from Cyclone Yas, where currently the landfall process is underway. It will continue for the coming 3 to 4 hours, and it is extremely crucial at this point where our forces continue to be on standby. And the Yas cyclone is moving towards northwest and will cross the Odisha coast at a very severe cyclonic storm, though it is not as intense as Cyclone Amphan was last year. But the landfall process, however, is currently underway, and we already know that the flight operations at Kolkata airport that has been suspended from 8:30 a.m. to 7:45 p.m. this evening, while many of those flyovers there in the affected region have now been closed for traffic. The landfall process that started around 9 a.m. this morning and is expected to continue for the coming 3 to 4 hours. It is expected that by 1 p.m. the tail end of the cyclone will also be completely moving towards landmass, and it is making landfall between Dhamra and Balasore regions, where wind speed is currently estimated to be around 120 to 140 kilometers per hour, and it is expected that the wind speed will continue in Balasore district to around 120 to 140 kilometers per hour. In Mayurbhanj district, the wind speed is expected to be around 100 to 100 kilometers per hour, where gradually it will start to slow down. So many of those affected areas, if we talk about Odisha, very heavy rain and thunder shower and very strong winds that are currently being seen, especially in Bhadrak, in Baleshwar, in Cuttack, in Debragar, in Denkanal, in Gajapati districts as well. In the area of West Bengal, where we know that over 11 lakh people that have already been evacuated or have been cleared from the low-lying areas. Meanwhile, in East Midnapur, one rescue column that has also been launched to rescue at least 32 civilians, which are said to be stuck due to a surge in the water levels. The water from the sea has also entered the residential areas in many of those houses in East Midnapur. Now, this is a landfall process of the cyclone Yas that commenced from 9 a.m. onwards, and currently the landfall process is on. It will take at least 3 to 4 hours. Currently, which is happening right now, is very, very crucial. As it moves towards the landfall, it will gradually start to weaken. यास जिसका नाम बताया जा रहा है, और बेहद डरावना यकीन मानिए तूफान होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम यहाँ इसके पास जो है पहुंच चुके समंदर के पास। हालांकि हवाएं जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब ये तूफान टकराएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रक्रिया जो है उसकी शुरू हो चुकी है, जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल इसके बाद की जो तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी तबाही के मंजर की, वो आप समझिए। सबसे बड़ी बात है कि हम लगातार इससे पहले भी देख रहे हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग मौजूद हैं, जिन घरों को नुकसान हुआ है, जिन दुकानों को नुकसान हुआ है, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हमारा कुछ भी नहीं बचा है। हम जो है पूरी तरीके से हम जो भी हमारा सामान था दुकान के अंदर वो तबाह हो चुका है, और इसीलिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए सीधी तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर समंदर की तस्वीरें किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें आपको जो है यहाँ पर नजर आ जाएंगी। और इतना ही नहीं, अब से कुछ ही देर बाद जब ये तूफान टकराएगा इस समंदर से, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन यकीन मानिए श्वेता, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है और 130 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज़ हवाएं जो है प्रति घंटे की रफ्तार से जो है यहाँ पर चल रही हैं। अब देखिए लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर खुद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो है टीमें मौजूद है, आपदा प्रबंधन विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और कोशिश यही लोगों की यहाँ पर जो है जारी है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो है यहाँ पर ना पहुँच पाए। देखिए बोट की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर की जा चुकी है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत जो है वो पहुँच चुका है, और हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर कोशिशें जो है की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हालांकि आगे जो है जाना क्योंकि साफ तौर पर मना है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये थी कि ग्राउंड जीरो पर आकर हम दिखा सके कि आखिर ये तूफान जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार अम्फान तूफान आया था उसने कितनी ज़्यादा जो है तबाही मचाई थी, और उसके बाद अब ये तूफान जो है वो कितनी तबाही मचाएगा, किस तरीके के मंजर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ऊंची ऊंची लहरें देखिए, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है अभी जब ये तूफान टकराएगा तो उसके बाद जो है तबाही बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि उससे पहले की जो हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जो हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें लोग साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमारा दुकान का सारा सामान जो है वो बर्बाद हो चुका है। हालांकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही डाउनफॉल हुआ उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि हल्की हल्की बारिश होगी। हालांकि पिछले 3 दिनों से कलकत्ता के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हमने ये भी देखा था कि गंगा का जलस्तर जो है किस
तरीके से लगातार बढ़ गया। लेकिन अभी फिलहाल देखिए समंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दीघा का ये समंदर जहां पर 365 दिन टूरिस्ट यहां पर घूमने आते हैं, लोग दूर दूर से यहां पर घूमने आते हैं। लेकिन आज जो है यहां पर तबाही का वो मंजर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, आपसे कुछ ही देर बाद जब वो तूफान टकराएगा उसके बाद की तस्वीरें भी हम सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें जो है अभी चल रही हैं। एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, पूरी तरीके से तैयारी की गई है। क्योंकि आपको ये याद होगा कि ममता बनर्जी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने सारे अधिकारियों को, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या आपदा प्रबंधन विभाग हो, उनको खास तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि आखिर आपको तैयारियां जो है किस तरीके की करनी है, आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करना है और कहां शेल्टर होम में जो है लोगों को भेजना है। खुद उन्होंने पूरी तरीके से निगरानी रखी हुई थी। हालांकि और अब जो है, क्योंकि आज खुद भी जो है ममता बनर्जी लगातार सुबह से जो है मौसम विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। वो खुद जो है ऑफिस गई थी और 48 घंटे तक जो है उन्होंने बोला था कि वहां पर जो है वो मौजूद रहेंगी। पल पल की नजर जो है रखी हुई है उन्होंने क्योंकि अगर बात करें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर जो है आज बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस तूफान का असर जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं, इस तूफान का असर उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर भी जो है वो देखा जाएगा। वहां भी जो है भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है कि वहां भी जो है भारी बारिश होगी। तो देखिए अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे जो है क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत मौजूद है और ये समुद्र से ऊंची उठती हुई जो लहरें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि जब ये तूफान आएगा उसके बाद की जो तबाही का मंजर होगा। एक बार देखिए आसपास की तस्वीरें, देखिए सारे जो पेड़ हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं पानी के अंदर। एक बार मैं अपने कैमरामैन से अपील भी करूंगी कि एक बार जो है वो ये वाली तस्वीरें दिखाई कि आखिर किस तरीके से पेड़ जो है वो टूटकर गिर चुके हैं। सिर्फ ये हालात समंदर के आसपास के नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें, कोलकाता की बात करें, हुगली की बात करें, मिदनापुर की बात करें, साउथ 24 परगना की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। क्योंकि ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो गंगा के आसपास पड़ जाते हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया के आसपास पड़ जाते हैं और इसीलिए अलर्ट जो है दोनों के लिए जारी किया गया था। और ये कहा गया था साफ तौर पर कि यहाँ पर जो है भारी बारिश होगी और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहाँ पर लोग जो है लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि